Hello everyone, good morning. Today is 7th 6 2025. I'm studying class 12 accounts, part 1, chapter 1, fundamental of partnership. Fundamental means base or basic. Okay, basic means starting point. Okay, trigger point. Now in this chapter, first we'll learn the definition of partnership. What do you mean by partnership? It is defined on the section 4. On section 4 of Indian Partnership Act 1932. It is important for MCQ portion, so underline it, mark it well. Okay, section 4 also. It is defined on section 4 of Indian Partnership Act 1932. What does it mean? Partnership means a relation. Underline this relation. Partnership means a relation between two or more persons. Relations between two or more person. That means you have minimum of 2% to become a partnership. Okay, to form a partnership, who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all. Means example, I will show you example. Okay, what does this scenario means? Definition means, here is Mr. X नहीं Y चला जाओ, X से मुझे नफरत है. ओके, यहाँ पे मिस्टर जेड, ये दोनों मिल करके करना चाहते हैं पार्टनरशिप एंड दे हैज फॉर्म हियर बिजनेस. ओके, they has formed your business. That is minimum number of persons should be between 2 or more person, either 2 or more. One person can't form a partnership. Okay, that's good, everything okay. Now between 2 or more person who have agreed to share the profit of the firm. ये लोग क्यों पार्टनरशिप करना चाहते हैं? क्योंकि प्रॉफिट लेना है. वो लोग को बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना मोटिव है और प्रॉफिट करके शेयर ले लेंगे अपना अपना. ओके, उसके बाद ऑफ अ बिजनेस कैरीड बाय ऑल. Either they both can work in a business. Either one of them or any of them acting for all. Either he will only work in the business and share of the profit will be distributed between both. ये भी हो सकता है कि दोनों काम करके प्रॉफिट लेके जाओ, या ये भी हो सकता है कि एक काम करो और सबको प्रॉफिट मिलेगा. ये सब भी हो सकता है. That is carried by all or any of them acting for all. That means this only. Okay. नाउ दिस कम्प्लीट्स माई डेफिनेशन. अब इसको याद करना कैसे है? यहाँ से ना मेन पॉइंट उठा लेंगे. अब डेफिनेशन याद करने के टाइम में नंबर 1 पॉइंट ले लो, रिलेशन. नंबर 2 ले लो, 2 और मोर पर्सन. 2 और मोर. नंबर 3 यू टेक शेयर ऑफ प्रॉफिट. नंबर 4 यू टेक कैरिड ऑन बाई ऑल. अपना डेफिनेशन पढ़ने नहीं बैठना आप लोग को. ये 5-4 चीज़ याद करो. अब डेफिनेशन खुद ब खुद आ जाएगा. लुक, अब मैं कैसे इसको पढ़ करके सारा डेफिनेशन पता कर देता हूँ. देखिए, पार्टनरशिप मीन्स अ रिलेशन बिटवीन whom two or more person who have agreed to share the profit of the firm carried on by all or any of them acting for all. देखो, ये 4 पॉइंट से सारा डेफिनेशन क्लियर हो गया मेरा. ठीक है, पढ़ते ऐसे है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Here, to form a partnership business you should have a minimum partner, at least 2 partner must be there, and maximum you is 50. Means 51. If you had a 51 partner in a business, that is not called a partnership. Okay, it should be 50, not crossing 50. Okay, now person who have entered into partnership are individually known as partners. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा, 2 बंदा और 3 बंदा मिलके क्या किया है, ये पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म कर दिया है. ठीक है, इनको ना इंडिविजुअली एक एक नाम देंगे, A, B and C. अब ये इंडिविजुअली जब बुलाएंगे इसको A, B, C, इनको बोलेंगे पार्टनर. इंडिविजुअली क्या बोलेंगे इनको? पार्टनर. ये यही बोल रहा था कि मेरा पार्टनर बोलेंगे इनको. और ये तीनों को जुड़ा करके क्या बोलेंगे? फॉर्म बोलेंगे. क्या बोलेंगे? फॉर्म. कलेक्टिवली नोन एज फॉर्म. ठीक है, और ये फॉर्म हो गया. ये तीनों मिला करके ये फॉर्म, और फॉर्म का तो एक ना एक नाम होना चाहिए. एंड द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ अ फॉर्म इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फॉर्म नेम. जो भी यहाँ पे नाम रहेगा, जैसे इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट हो गया, ये हो गया हम लोग का फॉर्म नेम. इसको बोलेंगे फॉर्म नेम. ठीक है, इंडिविजुअली पार्टनर, कलेक्टिवली फॉर्म, एंड जो नाम से ऑपरेट करेगा उसको बोलेंगे फॉर्म नेम. एवरीथिंग क्लियर? नाउ इट इज़ द मेन पॉइंट. ओके, पुट स्टार मार्क ओवर हियर.
partnership deed or agreement. What do you mean by partnership deed or agreement? Here you come. It is an instrument. Okay, what is instrument? I will tell you later. It is an instrument or document, you can say document also. It is the instrument and document containing the partnership agreement. कंटेनिंग मीन्स इसमें क्या लिखा रहता है, पार्टनरशिप का अग्रीमेंट लिखा रहता है कि प्रॉफिट कैसे बांटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट में देना है, लोन किस रेट में पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस रेट में चार्ज करेंगे, सब लिखा रहता है, ठीक है. अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. और नया पार्टनर एडमिशन कब करेंगे, ये सब लिखा रहता है. ओके, दैट इज पार्टनरशिप डीड इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इसको बोलेंगे कंटेनिंग द पार्टनरशिप अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर. जो लिखा रहेगा पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में, वो सब इसमें लिखना पड़ता है. पार्टनरशिप डीड होता कैसा है, आप मेरा यूट्यूब ये ना थंबनेल में देख लीजिए. पार्टनरशिप डीड होता है ऐसा वाला जिसमें 10 रुपीज़ वाला कोड स्टैम्प नोट जैसा रहता है, वैसे उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ द फॉर्म. इसको आर्टिकल ऑफ द फॉर्म भी बोला जाता है. आर्टिकल ऑफ द फॉर्म, आर्टिकल का मतलब क्या है, जो अपना फॉर्म लिख के रहता है, AOA और MOA बोलते हैं उसको. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें लिखा रहता है उसको बोलते हैं आर्टिकल. कंपनी का खुद का लिखा रहता है सबका. ओके, नाउ इंस्ट्रूमेंट टू द फॉर्मल, it refers to the formal written agreement or document that specifies the terms and condition of the partnership. पहले बोल दिया था कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है उसको बोलते हैं आर्टिकल. और इंस्ट्रूमेंट मतलब इट इज़ अ फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट को इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे. और आर्टिकल मीन्स दैट इज अ सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स एन इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंपनी. मीन्स इन अ कंपनी, तो क्या बोल रहा था, इट इज द सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंपनी. कंपनी के अंदर में जो इंटरनल वर्किंग रहता है ना, कि जो पार्टनर आया है उनका राइट्स क्या होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, एक को डिफाइन करेंगे. और एडमिशन के टाइम में क्या होगा, लीगल सूट आ गया तो क्या करेंगे, सब लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी आर्टिकल्स में. ठीक है, जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिखा है ना, उसमें राइट्स लिखा रहता है सबका, फंडामेंटल राइट्स, वो राइट्स एंड राइट्स सब लिखा रहता है ना, वैसा करके. नाउ इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. इज़ अ पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी? नो. आंसर इज स्ट्रेट अवे नो. ये बनाना ज़रूरी नहीं है. नो, इट इज़ नॉट ए मैंडेटरी. ओके, आप एक पार्टनरशिप में हो, 2-3 जन मिलके, और आपको पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर दिए 3 जन मिलके, और आप चाहते हो कि मैं पार्टनरशिप डीड ना बनाऊँ, दैट इज ऑल्सो ओके. आपको मन है तो बनाइए, मन नहीं है तो मत बनाइए. इसमें कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता. ओके, नाउ हियर विल डू वन सॉल्यूशन. ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन कर देंगे. रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी नहीं है, हम लोग नहीं बनाए. चलो 4 जन हम ABCD मिल के एक तो बिजनेस कर रहे थे, और हम बोले कि हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे. पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे सर्टेन रूल्स एप्लीकेबल होगा. रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ओके, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनर हम लोग नहीं बनाए तो हम 4 जन के बीच में एक तो रूल्स ना एप्लीकेबल हो जाएगा. ये सबको मानना है, ये फिक्स किया गया है. ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा कंसर्न, क्योंकि किसी को चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए होता है. ऐसा नो. अब जो पैसा कैपिटल में ओनर कैपिटल डालता है ना, जो बिजनेस स्टार्टिंग का बिजनेस डेज में जो पैसा डाला जाता है बिजनेस में, उसको कैपिटल बोलते हैं. और ईयर एंड में वो कैपिटल में इंटरेस्ट तो हर किसी को चाहिए. और A और B बोल दिया हमको 10% करके चाहिए, और B और C बोला 10% नहीं देंगे, तेरा बाप का राज है क्या बोल दिया वो लोग, तेरा बाप का राज है क्या, तो नहीं देंगे. इसका डिस्प्यूट हो गया ना, एक जन बोला 8%, एक जन बोला 10%. तो ये सब झगड़ा को काउंटर करने के लिए क्या बोल दिया है, अगर आपका डीड है, डीड में 8% लिखा है तो 8% दे दीजिए, 10% लिखा है तो 10% दे दीजिए. इफ़ यू डोंट हैव डीड, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स IOC. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो IOC इज अलाउड. चल तू झगड़ा करता रहे, मैं नहीं दूंगा किसी को. ओके, दिस इज द फर्स्ट. नेक्स्ट IOD, सेम टू सेम. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो ओनर कैपिटल का फॉर्म में जो पैसा डाला था ना, उसमें वो इंटरेस्ट मांगेगा. जैसे भी अब देखो, कोई ना कोई पार्टनर तो ड्राइंग भी करता है, यानी बिजनेस का पैसा ले जाकर पर्सनल यूज़ करता है, और उसमें जब वो लौटाएगा बिजनेस का पैसा, उसमें तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे. इंटरेस्ट चार्ज मीन्स इट इज़ अ इनकम फॉर द फॉर्म. ओके, तो वो इंटरेस्ट हम मांग सकते कि नहीं सकते. पार्टनर बोला कि हम 8% करके देंगे, लेकिन बिजनेस बोला कि 8 नहीं 10% करके दो,
तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी झगड़ा हो गया तो इसमें भी नो, इट इज नॉट चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड नॉट बी चार्ज। ओके, ये चार्ज नहीं करेंगे। सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन जो भी पार्टनर को मिलने हो। एक जन पार्टनर बोला हम ज़्यादा काम करता है, तू लोग 8 घंटा काम करता था, घर जाता था, मैं 10 घंटा तक काम करता हूँ बिजनेस में, तो मेरे को 10,000 पर मंथ करके मेरे को सैलरी भी चाहिए। तो हम बोले कि पार्टनरशिप डीड तो नहीं है, लिखा ही नहीं है। अगर पार्टनरशिप में लिखा होता कि हम इसको सैलरी दे देंगे 10,000 पर महीना करके, तो हमको देना पड़ता, लेकिन इसमें लिखा ही नहीं है, तो इसमें भी नॉट अलाउड। कोई सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। ओके, नाउ कमीशन, इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो एनी कमीशन इज अलाउड, ऐसा करके लिखना पड़ रहा है आप लोग को फुल सेंटेंस में। ओके, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो एनी कमीशन इज अलाउड, नॉट अलाउड अभी लिख देंगे हम खाली, नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक जन बोला कि हम ज़्यादा कैपिटल लाया है, हमको ज़्यादा शेयर चाहिए प्रॉफिट में। एक जन बोल दिया हम कम लाया है, हमको कम तो कोई नहीं मान सकता ना, सबको ज़्यादा ही चाहिए होता है। अब क्या बोल दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली, EQUALL इक्वली, ये 1:1 का रेशियो में देना चाहिए। ना सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे स्टार मार्क भी करके रखा हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब झगड़ा हो गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या होता है कि अगर ये फॉर्म है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो मेरा पार्टनर है। ओके, मिस्टर ए हम लोग को कितना दे दिया, 50,000 दे दिया, 50,000 लोन दे दिया, 50,000 लोन दिया हम बिजनेस को, हम मीन्स बिजनेस। ओके, मैं पर्सनल का बात नहीं करता हूँ अकाउंट्स में कभी भी। हमको क्या दे दिया, लोन दे दिया, और ये लोन में ये क्या बोलता है कि हमको 10% करके इंटरेस्ट दो। मिस्टर ए बोला हम आपको लोन दिया बिजनेस को, आप जब मेरे को पैसा चुकाओगे तो यू हैव टू पे मी विद द 10% ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो पार्टनरशिप डीड में तो नहीं लिखा है कि इसको 10% देना है कि 8%, पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाए हम लोग, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये वाला केस में रूल्स क्या बोलता है कि इसको इंटरेस्ट ऑन लोन तो आप दोगे, लेकिन 6% करके दोगे। कितना परसेंट करके, 6%, ना कि 10%। 10% नहीं मिलेगा आपको, 6% करके मिलेगा। आप जितना भी मांगो आपके हिसाब से कभी नहीं होता है, ठीक है। यू विल पे 6% पर एनम। ओके, 6% पर एनम। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर आपका डीड में लिखा रहता कि एडमिशन, हाँ ए ने बोल दिया तो 3 पार्टनर है, ए ने बोल दिया तो लेंगे, बी ने बोल दिया तो लेंगे, सी ने बोल दिया तो लेंगे। अगर वैसा लिखा रहता है व्हेन एडमिशन इज अलाउड टू द न्यू पार्टनर इन आवर बिजनेस, तो लेंगे। अगर नहीं बोला, इसमें तो एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, तो इसमें क्या करेंगे, नो एडमिशन is allowed without the consent of all existing partner, यानी सब एग्री करना चाहिए। एग्जाम्पल, 1 2 3 बंदा मिलके एक ठो पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक है, ये बिजनेस चल रहा है, और ये है ए, ये है बी और ये है सी। नाउ ए वांट टू एडमिट हिज ओन सन टू द बिजनेस, ए अपना बेटा लाना चाहता है बिजनेस में, अब 4 जन बनाना चाहता है, ठीक है। तो ए तो ला गया, इसने बी को भी पटा लिया और पार्टी वाटी दे देकर, और बी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, ठीक है। और ए ने बोल दिया बी को अलग से पार्टी दे दिया, और वो बोला कि हाँ मेरे तरफ से ओके, तू लेके आ जा तेरे बेटे को। तो 2 जन तो हो गया लाने वाला। और सी ने बोला कि नहीं भाई, तेरा घर का मैटर नहीं है ये, तू अपना बेटा को नहीं ला सकता बिजनेस में, एडमिट नहीं कर सकता। तो सी ने एक जन ने भी ऑब्जेक्ट कर दिया, तो एडमिशन नहीं मिलेगा इसको। लुक, नो एडमिशन इज अलाउड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी सब एग्री करना चाहिए। हाँ तू ला सकता है, सब ने बोल दिया तू ला सकता है, तू नहीं ला सकता, एक जन ने भी बोल दिया तो नहीं ला सकता है। ओके, दिस कंप्लीट्स माय टुडेस क्लास।
दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जहाँ जहाँ मैं ना हाईलाइट करके रखा हूँ आप लोग भी हाईलाइट करके रखेंगे, और डेफिनेशन याद करने का तरीका भी बता दिए थे आप लोग को। यहाँ से 4 पॉइंट उठाना है और उसी में से डेफिनेशन घुमा करके लिखना है। और ये पढ़े थे मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर, ठीक है। एंड पार्टनरशिप डीड पढ़े थे। इस पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी? नो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। बना मन है तो बनाओ, मन नहीं है तो मत बनाओ। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी हम लोग स्टार मार्क करके रखेंगे, ये वाला, ठीक है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आप लोग ये करो। पार्ट 2 विल बी अपलोडेड सून इन द यूट्यूब। ओके, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।